ऑलराइट, सो आज हम लोग पढ़ेंगे द सेकेंड वीडियो ऑन ब्राउनिन मोशन पार्ट 2. ऑलराइट, सो लेट अस रिकैपिचुलेट कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड ब्राउनिन मोशन के डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे standard Brownian motion is basically a continuous time analog of simple symmetric random walk, and we also studied about the general Brownian motion, and we also discussed the other characteristics of standard Brownian motion. All right, now let's solve a few problems, basic problems. These are the problems that won't come in the exam, but you should develop your understanding based on whatever you have studied in the first class. तो पहला सवाल है, if I want to calculate probability B5 is greater than 2. Now this is nothing but, you know that B5 follows normal 0,5. Alright, so this is equal to probability Z is greater than 2 by root 5, that is equal to probability Z is greater than so 2 by root 5, 0.8944. Now this is basically 1 minus capital phi of 0.8944, and also you can using tables you can calculate the values of capital phi 0.8944. Basically you need to interpolate between 0.89 and 0.90. Alright, इन दोनों values के बीच में आप interpolate करोगे, then you will get the answer of 1 minus capital phi of 0.8944. Alright, so the answer is 0.186. ठीक है. Coming to the next question, this is equal to, can I write this as probability? Now because B5 is not independent of B1, remember like I said, standard Brownian motion has independent increments over non-overlapping time periods. Over non-overlapping time period, अगर मैं इसकी बात करूं टाइमलाइन की, ये B1 captures how the process has changed over time 0 to 1, B5 captures how the process has changed over time 0 to 5. So this is overlapping time period. So B5 is not independent of B1. तो in order to drop, हमारा पहला टारगेट है कि ये कंडीशनिंग को हमें ड्रॉप करना है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, we'll split this. We'll basically write B1 plus B5 minus B1 is greater than 2, given that B1 is equal to 1. Now we'll take this side, this is equal to probability B5 minus B1 is greater than 2 minus B1, given that B1 is equal to 1. Now B1 की वैल्यू हमें पता है 1 है, B1 की वैल्यू हमने 1 इनपुट करेंगे यहीं पे, and this becomes 1. Now as you can see that this B5 minus B1 is independent of B1,
और क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो हम लोग ये कंडीशनिंग भी हटा सकते हैं अब. ऑलराइट, so this becomes probability b5 minus b1 is greater than 1. Now remember probability, so b5 minus b1 will follow normal 0 comma 4. So this is nothing but probability z is greater than 1 by under root 4, that is equal to probability z is greater than 0.5, that is equal to 1 minus capital phi of 0.5, and you get the answer of 0.309. All right. Now let's talk about this. Now here, since the increments are independent, all right, and remember one thing, that Brownian motion at any particular time, it is equally likely to go up and equally likely to go down. Why? Because there is zero drift. There is no inclination towards upward movement, there is no inclination towards downward movement. ठीक है, 50% चांस है कि ऊपर जा सकता है, 50% चांस है कि नीचे आ सकता है. ऑलराइट, सो दिस इज इन फैक्ट वी कैन राइट डाउन एज प्रोबेबिलिटी B3 is greater than B2 and multiplied by probability B2 is greater than B1. भाई इसको देखने का और एक नज़रिया ये है, ये B1 है, B1 से 50% चांस है कि वो ऊपर जाएगा और 50% चांस है कि वो नीचे आएगा. ठीक है, हाँ, अब इसके नीचे बहुत सारे वैल्यूज ले सकता है अगर, बट चांसेस कि वो B1 से ज़्यादा होगा वो तो 50% है ना. B2 अगर B1 से ज़्यादा होगा उसका प्रोबेबिलिटी 50% है, B2 से कम होगा उसका प्रोबेबिलिटी 50% है. कितना ज़्यादा होगा कितना कम वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना कि ज़्यादा होगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो B2 से भी ज़्यादा होगा B3, B3 B2 से कम भी हो सकता है. ऑलराइट, तो 50% चांस है कि ये ज़्यादा होगा और 50% चांस है कि ये इससे ज़्यादा होगा. तो ये दोनों इवेंट मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटीज, दिस विल गिव मी 0.25. ऑलराइट, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़े. ऑलराइट, नाउ if now the last question, probability BT is greater than A given that BS is equal to B. इसका एक जनरल फॉर्म निकालना है फॉर ऑल वैल्यूज वेयर T is greater than S. क्या मैं इसे लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी BS, अगेन BT अगर ज्यादा है BS से तो हमेशा हम लोग स्प्लिट करेंगे BS plus BT minus BS. This is the trick that we learned in Brownian motion. Now this question is similar to this question, all right? It's just that we are not calculating any number but a general answer. Now this is equal to BS को उधर लेके गए, और BS की जगह हम लोग पुट कर दिए B. ऑलराइट, एंड सिंस दिस इज
independent of Bs. Bt minus Bs is independent of Bs. We can drop the conditioning. So this ultimately becomes 1 minus capital phi of, या फिर एक जंप नहीं करता हूँ, z is greater than a minus b by under root t minus s. Now this is equal to 1 minus capital phi of a minus b divide by under root t minus s. Alright, कोई दिक्कत, कोई डाउट, क्लियर है? Alright, now एक और कैरेक्टरिस्टिक था कोरिलेटेड वीनियर प्रोसेस. लिखिए कोरिलेटेड वीनियर प्रोसेस. तो ZT is a linear process such that WT alpha and WT beta ये दोनों standard Brownian motion है, and these two process are independent. WT alpha और WT beta दोनों अलग अलग standard Brownian motion है and they are independent of each other. Alright, and this is the correlation coefficient between WT alpha and ZT. Clear? This is the correlation coefficient between WT alpha and ZT, and of course it lies between -1 to 1. Alright. Now, what will be the expectation of ZT? अगर ये वीनियर प्रोसेस है तो 0 होना चाहिए. तो expectation of ZT is equal to expectation of this plus under root of 1 minus sigma square WT beta. Now this is equal to, अब एक चीज बताओ, क्योंकि WT अल्फा और WT बीटा जो है वो इंडिपेंडेंट है, कैन वी नॉट राइट, कैन वी राइट एक्सपेक्टेशन ऑफ रो इंटू WT अल्फा प्लस expectation of under root 1 minus rho square into WT beta, and since these are constants इसे बाहर निकाला जा सकता है. ये क्या है, 0 है. क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? वेरिएंस, वेरिएंस गेस कर लो क्या होगा. वीनियर प्रोसेस है ZT, वेरिएंस क्या होगा, T होगा. लेट्स चेक. सो द वेरिएंस ऑफ ZT इज इक्वल टू variance of WT rho into WT alpha plus under root of 1 minus rho square into WT beta. Now since these two are independent events, independent process, WT alpha and WT beta, तो हमें स्प्लिट करने में आसानी होगी. रो बाहर जाएगा, स्क्वायर होगा, रो स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ WT अल्फा प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रो स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर. सो दिस इज 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ WT बीटा. WT अल्फा, WT बीटा आर इंडिपेंडेंट एंड स्टैंडर्ड Brownian मोशन.
तो WT alpha follows normal 0 comma t, WT beta also follows normal 0 comma t. Clear? So this is equal to rho square into t plus 1 minus rho square into t, that is equal to t. Clear? कोई दिक्कत, कोई डाउट? Alright. And to prove that rho क्या है? Correlation coefficient of ZT and WT alpha. देखते हैं कैसे. तो correlation coefficient का फॉर्मूला covariance of xy divide by under root of variance of x into variance of y. So covariance of ZT comma WT alpha divided by under root variance of ZT multiplied by variance of WT alpha, that is equal to क्या होगा? कोवेरियंस ऑफ ZT के जगह मैं लिखूंगा रो इंटू WT अल्फा प्लस 1 माइनस रो स्क्वायर का अंडर रूट इंटू WT बीटा. क्लियर? कॉमा WT अल्फा डिवाइड बाय अंडर रूट वेरिएंस ऑफ ZT इज T, अभी कैलकुलेट किए थे, एंड वेरिएंस ऑफ W अल्फा T, WT अल्फा इज ऑल्सो T. नाउ दिस इज इक्वल टू रो बाहर. नाउ सिंस WT अल्फा, covariance of WT alpha and WT alpha is variance of WT alpha, and since WT beta and WT alpha are independent, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा डिवाइडेड बाय T. नाउ दिस इज इक्वल टू रो इंटू T डिवाइडेड बाय T, दिस इज इक्वल टू रो. क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ऑलराइट. Now let's talk about, let's go ahead and talk about filtration process. Now filtration process के लिए conditions क्या क्या है? Filtration process FT basically is a process that contains entire past history of the stochastic process. FT has sigma algebra values of the stochastic process BT. Getting my point? Say for example अगर मैं क्रिकेट मैच की बात करूं, तो let's suppose क्रिकेट मैच में हम लोग गुड्डू और बबलू सट्टा लगा रहे एक दूसरे के साथ. गुड्डू विल बी गेटिंग 50 for every 6 that happens, and Bablu will be getting 500 for every wicket. All right. Now जब तक विकेट का तो चलो मिल जाएगा, लेकिन जब तक हमें एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि कितने 6 मारे गए हैं मैचेस में, तब तक तो हमें कैश फ्लोज नहीं पता चलेगा. मतलब एक एक बॉल का मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए. ऑलराइट. तो एक एक बॉल, जैसे जैसे एक एक बॉल बोल होगा, वैसे वैसे हमें पता चलते रहेगा कि गुड्डू ने कितना जीता और बबलू ने कितना जीता. ऑलराइट. तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? फिल्ट्रेशन प्रोसेस बेसिकली FT मतलब टाइम t तक जितना भी डेटा है, हिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस, 0 से लेके t तक जितना भी इंफॉर्मेशन है वो FT में इंक्लूडेड है. थिंक ऑफ इट एज अ क्लाउड. क्लाउड पे अपने डेटा स्टोर करते हैं ना अपने फोन का,
तो जैसे जैसे फोटो खींचते जाते हैं वैसे वैसे वो क्लाउड में ऑटोमेटिकली अपलोड होते रहता है। तो फिर आप जब मर्जी आप क्लाउड में देख सकते हो कि ये है कि नहीं है। तो ft कंटेन्स, अगर मैं बोलूं कि xt, अच्छा आगे लिख लो पहले कि इफ s is less than t then fs is a subset of ft, मतलब यहां तक जो हिस्ट्री है वो ft में इंक्लूडेड है और यहां तक हिस्ट्री जो है वो fs में इंक्लूडेड है। तो fs जो हुआ वो सबसेट हुआ ना ft का। क्लियर? इफ xt इज अडेप्टेड टू ft, xt इज अडेप्टेड टू ft, देन xt इज ft measurable। ऐसा कहते हैं कि if xt is adapted to ft, then xt is ft measurable. Alright? And if t is less than u, then for any standard Brownian motion bt, मतलब ये 0 है, ये t है और ये u है, ठीक है? तो for any standard Brownian motion bt, bu minus bt is independent of ft। ft का मतलब क्या है? यहां से यहां तक का इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स bu माइनस bt क्या है? यहां से यहां के बीच में कितना इंक्रीमेंट होगा। Brownian motion possess the characteristics of independent increment over non-overlapping time period। तो bu माइनस bt मतलब इस टाइम पीरियड में कितना बढ़ेगा घटेगा, वैल्यू कितना इंक्रीमेंट होगा, that has nothing to do with the performance till time t। टाइम t तक का डेटा से आप उसका प्रेडिक्शन नहीं कर पाओगे कि आगे वो कैसा परफॉर्म करेगा। ऑलराइट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। क्लियर? तो अगर हम लोग सट्टा खेल रहे हैं, अगर गुड्डू और बबलू सट्टा खेल रहे हैं, तो गुड्डू और बबलू ये लोग नोट करके नहीं रखेंगे कि भैया कितना, किस बॉल में कितना आया। वो लोग मैच देख के पूरा एक एक बॉल नोट नहीं करेंगे। ये लोग स्कोर कार्ड देखेंगे और ये लोग पूरा एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिक्सेस स्कोर्ड एंड नंबर ऑफ विकेट्स ये देखेंगे। तो ये जो स्कोर कार्ड है विच इज द सिग्मा, विच इज द सम ऑफ द डेटाबेस बेसिकली, कि 0 बॉल में कितना रन हुआ, 1 बॉल में कितना रन हुआ, 2 बॉल में कितना रन हुआ, 3 बॉल में कितना रन हुआ, ऐसे से करके जो डेटा मिलता जाएगा वो डेटा सम अप अक्यूमुलेट होते जाएगा। तो ये जो डेटा है हमारे पास दैट इज ft। तो xt इज अडेप्टेड टू ft, मतलब xt क्या है? गुड्डू बबलू ने कितना जीता, इज अडेप्टेड टू द स्कोर कार्ड ft। ft contains all the values till time t, so ft contains entire history of the process till time t। clear? this is the filtration। तो फिल्ट्रेशन यूज कहां होता है? बेसिकली हम लोग यहां पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग b1 इज इक्वल टू 1, वी कैन राइट f1 एंड वी कैन ऑल्सो से दैट b1 का वैल्यू 1 था। ठीक है? गिवन b1, गिवन f1 का मतलब b1 टाइम 1 तक हमें सारा इंफॉर्मेशन पता है, सारी वैल्यूज पता है। क्लियर? So this is required, this concept is very required to understand what are martingales। ठीक है? तो मार्टिंगेल जैसा कि हमने डिस्कस किया था is a stochastic process that is expected to stay where it is। martingales
आर एक्सपेक्टेड टू स्टे वेयर इट इज। तो मार्टिंगेल्स का एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि xt is if xt is a martingale then xt is adapted to ft, मतलब xt is ft measurable, alright, ये होना चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस सैंपल पाथ होगा एंड ft में जैसे जैसे xt का इंफॉर्मेशन पता चलते जाएगा वैसे वैसे ft में वो इंफॉर्मेशन एड ऑन होते जाएगा। क्लियर? ft is not the sum of xt. ft contains the past history of the process, how xt has evolved from time 0 to time t. This information is contained in ft. Think like that. Clear? तो अगर मैं ये लिख रहा हूं कि xt गिवन fs फॉर t ग्रेटर देन s, इसका मतलब क्या है कि हमें s तक सारी इंफॉर्मेशन पता है। किस चीज का इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस x। तो xs माइनस 1 या xs से पहले जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारा कंटेन्ड है fs में। क्लियर? तो fs तक हमारा s तक सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है एंड t इज ग्रेटर देन s, तो s से t में क्या होगा वो हमें नहीं पता, वो रैंडम है। पॉइंट क्लियर? सेकेंड कंडीशन टू बिकम अ मार्टिंगेल, फॉर अ प्रोसेस टू बी अ मार्टिंगेल, इज दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ द मॉड ऑफ xt should be less than infinity for all values of t. This is just to ensure that xt can be integrated. ठीक है ना? पार्ट 3, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं इन क्वेश्चंस। पहला दो क्वेश्चंस में पहला दो कंडीशन प्रूव करने के लिए नहीं आता, सेकंड थर्ड कंडीशन ही हम लोग यूजुअली प्रूव करते हैं कि इफ xt इज अ मार्टिंगेल और नॉट। सो द थर्ड कंडीशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ xt गिवन fs इज इक्वल टू xs। अब देखो, अब आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। fs का मतलब है कि हमें गिवन fs का मतलब क्या है कि हमें s तक सारा इंफॉर्मेशन पता है। क्या चीज का इंफॉर्मेशन? कि x कैसे इवॉल्व हुआ है टिल टाइम s, 0 से लेके s तक x कैसे इवॉल्व हुआ है वो सारा इंफॉर्मेशन हमें पता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ गिवन fs। क्लियर? सो एक्सपेक्टेशन ऑफ xt गिवन fs इज इक्वल टू xs, मतलब what is the latest information in this? Latest information is xs. So martingale as per definition is the process is expected to stay where it is. Clear? मतलब there is no inclination to move upward and no inclination to move downward, then the process is said to be a martingale. Clear? तो expectation xt जो है for t greater than s, remember मतलब ये है टाइमलाइन, xs तक वैल्यूज हमें पता है, s तक टाइम s तक वैल्यूज पता है, एंड द मोस्ट रीसेंट वैल्यू दैट वी हैव नोन इज xs। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ xt जो कि फ्यूचर में जो वैल्यू होगा उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू given that we know the values till time s is equal to xs, then xt is a martingale। मतलब zero drift, no inclination to move up, no inclination to move down। भाई गुड्डू सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है तो देर इज नो
बायसनेस कि वो कॉइन उछालेगा तो नीचे ही आएगा या ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। 50% चांस है कि ऊपर जाएगा, 50% चांस है कि नीचे आएगा। इक्वली लाइकली टू गो अप, इक्वली लाइकली टू गो डाउन। पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? ऑलराइट, व्हाट्स अ सुपर मार्टिंगेल? सुपर मार्टिंगेल का मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी गिवन एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एस। मतलब या तो ड्रिफ्ट आपका जीरो होगा, मतलब इक्वल टू भी है इसमें, ध्यान रहे इसमें लेस देन भी है और लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, खाली लेस देन नहीं लिखा हुआ है। क्लियर? तो इधर इट हैज जीरो ड्रिफ्ट और इट हैज अ नेगेटिव ड्रिफ्ट, देन xt इज अ सुपर मार्टिंगेल। मतलब या तो नेगेटिव ड्रिफ्ट होगा या तो जीरो ड्रिफ्ट होगा, या तो प्रोसेस जो है वो उस लेवल पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड है, या तो प्रोसेस उस लेवल पे रहेगा या तो नीचे जाएगा, तब वो प्रोसेस को हम लोग सुपर मार्टिंगेल बोलेंगे। क्लियर? सब मार्टिंगेल इसका उल्टा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी गिवन एफ एस is greater than equal to xs, then xt can be known as sub-martingale. तो either it has zero drift और positive drift, या तो सेम लेवल पे रहेगा या तो ऊपर ही जाएगा। ऑलराइट, एक्सपेक्टेड, क्लियर? एक्सपेक्टेड है कि प्रोसेस फ्यूचर में या तो सेम लेवल पे रहेगा या तो ऊपर ही जाएगा, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ सब मार्टिंगेल। क्लियर? तो अगर कोई प्रोसेस, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि एक प्रोसेस है वो सुपर मार्टिंगेल भी है और सब मार्टिंगेल भी है, तो क्या बोलोगे आप? तो मार्टिंगेल है। पॉइंट क्लियर? सुपर मार्टिंगेल मतलब एक्सपेक्टेड है या तो नीचे जाएगा या तो सेम लेवल पे रहेगा। सब मार्टिंगेल मतलब या तो सेम लेवल पे रहेगा या तो ऊपर जाएगा। तो अगर प्रोसेस दोनों है तो इसका मतलब मार्टिंगेल है। पॉइंट क्लियर? ऑलराइट, नाउ बिफोर वी मूव ऑन थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ते हैं। नाउ थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेते हैं। बेसिक्स क्या है भाई? हमने ये पढ़ा है जरूर कि x follows log normal distribution. If x follows log normal distribution with parameters mu, sigma square, then log of x will follow normal distribution with parameters mu and sigma square. Now similarly, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि if y follows normal distribution, ये तो हुआ कि भाई log normal अगर दिया हुआ तो normal में कैसे आना है, बट अगर normal दिया हुआ तो log normal में कैसे लेके जाएंगे? तो अगर y follows normal distribution with parameters mu, sigma square, then e to the power y will follow log normal distribution with parameters mu, sigma square. This can be verified by the fact कि भाई ये log normal follow करता है तो normal क्या follow करेगा? इसका log will follow normal distribution. So log of e to the power y should follow normal mu, sigma square. And what is log of e to the power y? Y. So y follows normal mu, sigma square, and that was given. Point clear? तो ये ध्यान में रहे कि अगर y follows normal distribution with parameters mu, sigma square, तो शॉर्टकट ये होगा कि e to the power y will follow
लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ये ध्यान में रहना जरूरी है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रूव कि ये सारे प्रोसेस जो है वो मार्टिंगेल है। तो ये अगर मार्टिंगेल है तो अपनी थर्ड कंडीशन ही अपने को प्रूव करना है कि ये मार्टिंगेल है। नाउ इफ यू गो बाय द थर्ड कंडीशन कि xt आपको दिया हुआ है bt स्क्वायर माइनस टी, तो इसका मतलब xs क्या होगा, bs स्क्वायर माइनस s। अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को ये प्रूफ करना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xt गिवन fs इज इक्वल टू xs, ये प्रूफ करना है। क्लियर? नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ xt गिवन fs क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ bt स्क्वायर माइनस टी गिवन fs। नाउ bt स्क्वायर माइनस टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, अगेन इसमें वही रूल अपनाना है कि भाई bt को हम लोग क्या स्प्लिट करेंगे, फॉर अगेन फॉर s लेस देन t, bt इज इक्वल टू bs प्लस bt माइनस bs। तो bs पे जो वैल्यू है प्लस द इंक्रीमेंट। क्लियर? सो bs पे bt स्क्वायर है यहां पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, bs प्लस bt माइनस bs का होल स्क्वायर माइनस टी गिवन fs। क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल टू bs स्क्वायर प्लस 2bs bt माइनस bs प्लस टू प्लस bt माइनस bs का होल स्क्वायर माइनस टी गिवन fs। नाउ बिकॉज ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ fs है, तो हम लोग ये कंडीशनिंग को ड्रॉप कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ bs स्क्वायर, bs स्क्वायर तो बाहर चला गया बिकॉज bs स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है। ऑलराइट, प्लस 2bs इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ bt माइनस bs विदाउट द कंडीशनिंग, बिकॉज हमें ये bt माइनस bs इज इंडिपेंडेंट ऑफ fs, इंडिपेंडेंट ऑफ bs, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट्स प्रॉपर्टी, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ bt माइनस bs का होल स्क्वायर माइनस टी। कोई डाउट, कोई दिक्कत इसमें? नाउ दिस इज कमिंग टू bs स्क्वायर प्लस व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, bt माइनस bs फॉलोज क्या, नॉर्मल 0 t माइनस s। ऑलराइट, तो x का एक्सपेक्टेशन 0 है, मतलब प्लस 0 प्लस, अब एक चीज बताओ, वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x का
स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर. Now in this case, expectation of bt minus bs is equal to 0. Variance of bt minus bs is equal to expectation of bt minus bs का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ bt माइनस bs का होल स्क्वायर. नाउ ये 0 है तो इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ bt माइनस bs इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ bt माइनस bs का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू t माइनस s. पॉइंट क्लियर. तो ये पार्ट 0 है तो ये पूरा पोर्शन हो गया 0, ये पूरा पोर्शन हो गया t माइनस s. ऑलराइट, so plus t minus s and here we have minus t. So this becomes bs square minus s and that is nothing but xs. Therefore martingale. Clear? Now the second question. भाई यहाँ तक लिखना है, लिख लो. Now the second question. Second question क्या है? We need to prove that this is also a martingale. तो ये क्या होगा, बोलिए. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टी गिवन एफ एस, पहले तो एक्स एस डिफाइन कर लेना, ठीक है. देयरफॉर एक्स एस इज इक्वल टू ई एक्स पी 2bs minus 2s. Clear? So this is equal to expectation of e to the power 2bt minus 2t given fs. Now this is equal to, again same old technique, e to the power 2 bs plus bt minus bs ऑलराइट. ना यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स जो इंडिपेंडेंट है और जिसका वैल्यूज पता है, जो कांस्टेंट है, वो बाहर ले जाते हैं. तो e to the power 2 bs minus 2t into expectation of e to the power 2 into bt minus bs given fs. ठीक है ना. पहला बात तो bt minus bs is independent of bs. ठीक है. So it is also independent of fs. fs में क्या है, 0 से s तक का जितना भी हिस्ट्री है वो सारा का सारा fs में है. क्लियर. सो बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट we can drop the conditioning here. So this is equal to e to the power 2 common bs minus s into expectation of e to the power 2 into
बी टी माइनस बी एस, ये होगा. नाउ नोट, अब एक चीज बताओ, बी टी माइनस बी एस फॉलोज क्या, नॉर्मल 0 कॉमा टी माइनस एस, क्लियर, एंड सिग्मा इंटू बी टी माइनस बी एस will follow normal 0 comma sigma square t minus s, क्लियर. अब इसी का पावर है, तो जो ये नोट लिखाया था वो यहां काम आएगा, मतलब ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद द सेम पैरामीटर. सो e टू द पावर दिस होल थिंग तो देखा जाए तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, लॉग नॉर्मल के केस में एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इफ x फॉलोज लॉग नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर होता है. तो सिग्मा is nothing but 2. So this is equal to e to the power 2 into bs minus s into e to the power mu is 0 plus half into सिग्मा स्क्वायर, मतलब 4 इंटू टी माइनस एस, क्लियर. सो e टू द पावर 2bs माइनस s, सॉरी माइनस टी था, ये देखिए गड़बड़ की है यहाँ पे. ऑलराइट, सो दिस इज टी, दिस इज ऑल्सो टी, दिस इज ऑल्सो टी, एस की जगह टी लिख दिया, क्लियर है. करेक्शन कर लो, यहाँ से मैंने ये स्टेप लिखा, यहाँ पे 2 मैंने कॉमन लिया था तो बी एस माइनस एस लिख दिया था भूल से, वो बी एस माइनस टी होगा, ठीक है. दिस इज इंटू ई टू द पावर 0.5 इंटू 4 इज 2, 2 इंटू टी माइनस 2 इंटू एस, तो ये हो गया e to the power 2 bs minus s, and this is nothing but this is xs. क्लियर, कोई दिक्कत, कोई डाउट. द थर्ड क्वेश्चन, तो this is equal to xt. Similarly, we'll do the third question. ये भी मार्टिंगेल के लिए प्रूव करना है. तो expectation of xt given fs is equal to expectation of e to the power sigma bt minus 0.5 e to the power lambda bt, sorry, minus 0.5 lambda square t given fs. this is equal to, इसे बाहर निकालेंगे, e to the power
minus 0.5 lambda square t into expectation of, again bt को लिखेंगे bs plus bt minus bs, so e to the power lambda of bs plus bt minus bs given fs. So this is equal to e to the power lambda bs बाहर, e to the power lambda bs minus 0.5 lambda square t into expectation of e to the power lambda bt minus bs given fs. Now since this bt minus bs is independent of fs, independent increments, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको. So you can drop the conditioning. Now this is equal to e to the power lambda bs minus 0.5 lambda square t. Now again this follows क्या, e to the power lambda bt minus bs will follow क्या, log normal distribution parameter 0 comma lambda square t minus s. ठीक है, सेम तरीका है. ऑलराइट, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, इसका एक्सपेक्टेशन विल बी e to the power 0 mu plus half sigma square, so 0 plus 0.5 into sigma square मतलब 0 lambda square into t minus s. Clear? Now this is equal to e to the power lambda bs minus 0.5 lambda square t plus 0.5 lambda square t minus 0.5 lambda square s. ये गया. This is equal to e to the power lambda bs minus 0.5 lambda square s, and that is nothing but xs. It implies मार्टिंगेल. पॉइंट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़े. ऑलराइट, सो आगे क्या है? नाउ बैकेलियर वाज वन ऑफ द फर्स्ट मैथमेटिशियंस, French mathematician, who modeled that the share price, who thought that the share price can be modeled as initial value plus some change. All right, so S0 is the initial value, ST is the value of share at time t, and plus some sigma multiplied by the BT, and BT is the standard Brownian motion. So the randomness was inherited here of the standard Brownian motion. That was multiplied by a sigma, and some initial value was added to it. All right. Now this model, again this is not in the curriculum, but I'm just sharing in the history. This model had two major defects. Now defect number 1, negative share price. Negative share price कैसे भाई? BT follows normal 0 comma t. Sigma of BT will follow normal 0 comma sigma square t. You add S0 तो origin बढ़ गया. Clear? Now for all practical, ऐसे तो
नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज होता है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी अज्यूम की रेंज इज -3 टू +3, ठीक है। तो अगर z के टर्म्स पे लिखे तो हमारा ये आएगा S0 - 3 sigma root t, alright, ST lies between this value and this value, this is -3, this is +3, इसको स्टैंडर्डाइज किया है तो कन्वर्ट करके ये आएगा, बोलिए। नाउ क्या ये नेगेटिव नहीं बन सकता? एट सम वैल्यू ऑफ t एंड एट सम वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड एट सम वैल्यू ऑफ S0, ये नेगेटिव तो बन सकता है ना। एंड शेयर प्राइस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो दिस वाज वन ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ दिस मॉडल, क्लियर। द सेकंड डिफेक्ट ऑफ दिस मॉडल was that the absolute returns were independent of initial investment. लिखो, the defect was that the absolute returns are independent of the initial investment. ठीक है, कैसे भाई? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज एब्सोल्यूट रिटर्न एंड व्हाट इज रिलेटिव रिटर्न्स। गुड्डू और बबलू हमारे कैरेक्टर्स। नाउ गुड्डू ने ए लिमिटेड कंपनी पे पैसा लगाया, बबलू ने बी लिमिटेड कंपनी पे पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया। गुड्डू ने कितना इन्वेस्ट किया? ए लिमिटेड, दोनों ने एक एक शेयर खरीदा। ए लिमिटेड का शेयर का प्राइस था 1000 रुपया, बी लिमिटेड शेयर का प्राइस था 4000 रुपया, ठीक है। आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम गुड्डू बबलू दोनों जीते, दोनों साथ है भाई, दोनों भाई है। तो गुड्डू का शेयर का प्राइस 1100 हो गया और बबलू का शेयर का प्राइस 4400 हुआ। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स गुड्डू ने कितना कमाया? 1100 माइनस 1000, यह है गुड्डू का अर्निंग्स। और बबलू का अर्निंग्स कितना है? 4400 माइनस 4000। तो गुड्डू ने 100 कमाया तो बबलू ने 400 कमाया। भाई बबलू के पास ज्यादा दिमाग था, ये तो पता ही था हमें। खैर, इफ यू टॉक अबाउट द रिलेटिव रिटर्न्स, दोनों का 10% है, दोनों ने 10% कमाया। बट आप बोलोगे 10% ऑफ व्हाट, करेक्ट? तो रिलेटिव रिटर्न्स तो सेम है, लेकिन बबलू ने ज्यादा कमाया। अब एब्सोल्यूट टर्म्स पे बबलू ने ज्यादा कमाया, तो बबलू का जो अर्निंग्स है दैट वाज 4400 माइनस 4000। तो जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स है दे कैनॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कि इनिशियली शेयर प्राइस 4000 था, अब वो 4400 हुआ है, तो 4400 माइनस 4000 कर रहे हो ना, तब जाके एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिल रहा है ना। दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इफ यू टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, accumulated value is equal to p into 1 plus I to the power n। तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स क्या होता है? p into 1 plus I to the a minus p, that is equal to p into 1 plus I to the power n minus p, that is equal to p multiplied by, so this is the initial investment,
Point clear? So absolute returns must not be independent. Ideally, absolute returns must not be independent of initial investment, which was here in this case. Therefore, this is one of the defect of the model. जैसे कि how is this there? भाई एस का वैल्यू क्या है? S0 प्लस सिग्मा बी एस, तो एस टी माइनस एस एस क्या होगा? सिग्मा बी टी माइनस बी एस. तो कहां गया S0? S0 तो है नहीं. In order to calculate absolute returns, तो if where you started does not matters, तो मैं भैया 4000 क्यों 1000 इन्वेस्ट करूं तब जाके 4400 मिले, क्या दिक्कत है? 1000 इन्वेस्ट करूं 1400 मिले. कितना इन्वेस्ट किया भाई? बबलू ने 4000 इन्वेस्ट किया तब जाके उसको 4400 मिला. समझो बात को. So Bachelor had these two defects. Now that is why we are constructing a model which does not have these two defects, and that is called the log normal model or the geometric Brownian motion. Alright, so geometric Brownian motion का मॉडल ऐसा कुछ है. st is equal to s0 into e to the power mu t plus sigma bt, where bt is the standard Brownian motion, st is the price of the share at time t, s0 is the initial value. यहां पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना चाहूं, ऑलराइट, क्या मैं एस टी को लिख सकता हूं? अब एक चीज बताओ, सिग्मा बी टी फॉलोज नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर टी, म्यू टी प्लस सिग्मा बीटी क्या फॉलो करेगा? नॉर्मल नाउ ln of S0 प्लस म्यू टी प्लस सिग्मा बीटी क्या फॉलो करेगा? Now e to the power this will follow log normal distribution. So ln of S0, e to the power ln of S0 is S0 into S0. So S0 नीचे आ जाएगा और e to the power बाकी सारा टर्म्स रहेगा. ठीक है, तो e to the power, मैं स्टेप लिख लेता हूं.
ये पार्ट क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? Now, so ST follows log normal S0 what is SS क्या होगा? S0 into e to the power mu s plus sigma bs होगा, clear? And ST minus SS is the absolute returns. This is equal to S0 common e to the power mu t plus sigma bt minus e to the power mu s plus sigma bs. Now, absolute returns are not independent of the initial investment here. Clear? तो एक डिफेक्ट तो जा रहा है, दूसरा डिफेक्ट भी चल गया ऑटोमेटिकली अगर आप जान पा रहे हो तो भाई e to the power anything will give us पॉजिटिव वैल्यू, S0 तो पॉजिटिव होगा ही, तो शेयर प्राइस कैन नेवर बिकम नेगेटिव इज वैलिड इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक ब्राउनिन मोशन. ज्योमेट्रिक ब्राउनिन मोशन का और भी डिफेक्ट्स अपने बाद के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बट अभी अपने को यह देखना है कि हाउ ज्योमेट्रिक ब्राउनिन मोशन इज एन इंप्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस प्रोसेस. ऑलराइट, तो बैकलेयर मॉडल से बेटर क्यों है? क्योंकि नंबर वन, the share price can never be negative, that has overcome by the geometric Brownian motion model. The absolute returns are not independent of the initial investment here. Point clear? Now, I also want to know the distribution of ST by SS. ST by SS क्या होगा? E S0 e to the power mu t plus sigma bt divide by S0 into e to the power mu s plus sigma bs. This is equal to e to the power mu t minus s plus sigma bt minus bs. Now, अगर मेरे को इसका डिस्ट्रीब्यूशन जानना है, उसके लिए फिर हम लोग वर्किंग करेंगे यहाँ पे कि भाई सिग्मा या bt माइनस बी एस से स्टार्ट करते हैं. bt माइनस बी एस फॉलोज नॉर्मल 0 t माइनस एस. कोई दिक्कत, कोई डाउट? सिग्मा इंटू बी टी माइनस बी एस. ना ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आई अंडरस्टैंड कि अपने बार बार एक ही से रिपीट करें, लेकिन यही चीज आएगा इसमें. सो सिग्मा बी टी माइनस बी एस फॉलोज नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर t माइनस एस. नाउ mu t minus s plus sigma bt minus bs फॉलो करेगा क्या? नॉर्मल t माइनस s कॉमा t माइनस mu t माइनस s कॉमा सिग्मा स्क्वायर t माइनस s. So, this is equal to y ले लो, तो e to the power y will follow क्या? log normal
Clear? So this will follow, matlab this is equal to ST by SS, and this will follow log normal distribution with parameters mu t minus s comma sigma square t minus s. Point clear? Now let's practice two simple question. Given that S0 is equal to 1000, mu is equal to 1.25, sigma is equal to 2, and we have this log normal model. All right. So we need to know the probability that S2 is greater than 1080. So probability S2 is greater than 1080 is equal to, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग log normal से normal then standard normal. Alright. So S2 तो log normal distribution follow करेगा, तो ln of S2 follows normal distribution. Now ln of S2 अब स्टैंडर्ड नॉर्मल में लेके जाना है. स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे लेके जाएंगे? दैट इज इक्वल टू, ध्यान में रहे, S2 फॉलोज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स म्यू इंटू 2 प्लस कॉमा sigma square into t. ठीक है ना? Follows normal. All right. So this is equal to probability Z is greater than ln of 1080 this is ln of S0, so ln of 1000 minus ln of 1000 plus 2.5 this is coming to, एक second, ln of 1080 minus ln of 1000 plus 2.5 divided by under root 8. So this is coming to minus of 0.8566, minus of 0.8567 we can take.
ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 0 है, यहाँ पे से ज़्यादा है, मतलब 0.8567 से कम, मतलब दिस इज इक्वल टू कैपिटल 5 0.8567, this should come to, let me check, so we'll do rough interpolation. 0.85 और 0.86 के बीच में लाई कर रहा है here, so 67% it is closer to 0.86 and 33% it is closer to 85. So 0.33 into 0.80234 plus 0.67 into 0.80511. So probability is 0.80419, so 0.804 लिख सकते हो। Point clear? Similarly, you can calculate this probability. All right. ये होमवर्क है, इसे कैलकुलेट खुद से कीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है। अपने पहले आप CS1 CS2 में आप कर चुके हो, इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको ये आएगा, पैरामीटर्स पता है, डेराइव अपने कर चुके हैं सब चीज़। S5 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, स्टेप 1 स्टेप 2, प्रोबेबिलिटीज़ को नॉर्मल में कन्वर्ट करो, फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल में करो, फिर वैल्यूज़ निकालो 5 से। क्लियर? So next class we'll be doing questions on Brownian motion. Concept wise we are done with Brownian motion and Martingale's wala chapter. All right. Thank you so much.